Hello everyone, this is Pooja Singhal and I again welcome you to this channel of Road to Lubasna, and today we are going to discuss the current affairs for the second week of May, which is 8th May to 16th of May. And before we start, let me tell you the strategy how to solve the questions, as we don't have the active poll here. So what you can do, for example, this is the question and you feel that statement 1 is incorrect, so write down the proper explanation why you think statement first is incorrect. In that way you will be able to evaluate yourself, like if you are still weak in the basic concepts, then you can go back and revise the basic concepts. And if there is a problem in elimination, then you can work upon your elimination strategy just by solving number of mocks and number of questions. And also one more thing is just watching this current affairs video once a day will not help you, because revision is the key for this exam. If you are working, like if you are solving these current affairs today, just make sure that you will make a schedule that when you're going to revise which week current affairs. So at least after a week, if you have time, if you find some times, then you can go back and revise the previous current affairs, which will definitely help you in your preparation. So first, let's start with the first question. It says, consider the following about Pangong Tso Lake. So first statement says, being saline water lake, it freezes completely during winters. It's a part of Indus River Basin. Most part of this lake lies in India. So it is asking you which is the correct choice out of these three. So pause the video and try to mark the answers. Try to write down the justification if you're eliminating the statements, and then play it again to see the answer. So the correct choice here is option this only statement 1 is correct, that yes, being a saline water lake, it freezes completely during winters. Saline water lake यहाँ क्यों मेंशन किया गया, क्योंकि saline water का जो freezing point होता है वो और कम टेम्परेचर पे जाके होता है. Then it says कि saline water होने के बावजूद भी it freezes completely during winter. So yes, this statement is correct. Second और थर्ड स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट. क्यों? बिकॉज इट्स नॉट अ पार्ट ऑफ इंडस रिवर बेसिन, और जो है हमारा ये लेक मोस्ट ऑफ द पार्ट इंडिया में नहीं लाई नहीं करता है. 60% of the length of the lake lies within the Tibetan region. So India में नहीं है. That is the reason second and third statement is incorrect. You can have the proper justification here. And if you find any discrepancies in the data and you have any doubts, please come back to me via the Telegram channel. And the name of the Telegram channel is mentioned in the comment section below the video. So by that link, you can join us there. Moving on to the next question of the day, it says, consider the following about styrene gas leak. Recently ये incident हुआ है styrene gas leak का, उसके ऊपर question है. The source of the leak was a styrene plant owned by LG located in Vizag. Styrene है क्या? It is a flammable liquid. It's similar to Bhopal gas tragedy, as the same gas was leaked in the Bhopal gas tragedy as well. सो भोपाल गैस ट्रेजेडी जब हुआ था उसमें भी सेम गैस रिलीज हुआ था, इसीलिए लोग बोल रहे हैं कि इट इज सिमिलर टू दैट ट्रेजेडी ओनली. सो यू नीड टू फाइंड आउट विच इज द करेक्ट चॉइस हियर. So pause the video once again and try to answer. Let's see what is the correct choice. The correct choice is the source of the leak was styrene plant. ये बिल्कुल करेक्ट है. LG का प्लांट था, कोरियन इंडस्ट्री है इसको, और ये वाइजैग में है, इसी से ये गैस लीक हुआ था. और स्टाइरीन ये प्लांट का नाम ही स्टाइरीन प्लांट है. और स्टाइरीन क्या होता है? इट्स अ फ्लेमेबल लिक्विड होता है स्टाइरीन. और भोपाल गैस ट्रेजेडी वाला स्टेटमेंट इसलिए गलत है क्योंकि भोपाल गैस ट्रेजेडी के अंदर ये गैस लीक नहीं हुई थी. उसके अंदर मिथाइल आइसोसाइनेट गैस लीक हुई थी, जो कि बहुत ज़्यादा पॉइजनस होती है. सो फॉर द डिटेल एक्सप्लेनेशन यू कैन read the data here, and if you have any issues, please come back to us. Next question says, consider the following statements. A report on the impact of energy efficiency measures for the year 1819 is recently released by Ministry of Power and New Renewable Energy. Its main aim is to analyze all the key energy efficiency programs in India in terms of total energy saved and the related reduction in the CO2 emissions. So you need to find out the incorrect choices here. So what is the incorrect choice? I hope you're pausing the video and trying to answer. So the incorrect choices here is nothing, because both the statements are correct. अभी recently ये release हुआ है impact of energy efficiency measures for the year 1819. रिलीज़ किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ पावर एंड न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के द्वारा ही. और उसका मेन एम क्या है कि सारे ऑल द की एनर्जी एफिशिएंसी प्रोग्राम्स, जितनी भी एनर्जी एफिशिएंसी के प्रोग्राम्स लॉन्च हुए थे, उसको एनालाइज करना कि उससे एनर्जी सेव हुआ भी है या नहीं हुआ है, और हम कार्बन एमिशंस कम कर पा रहे हैं या नहीं.
सो ऑल इज द कीवर्ड हियर. ऑल को देख के आप लोग एलिमिनेट मत करना. इन एक्सट्रीम वर्ड है, आई अग्री, लेकिन ये स्कीम जो है, ये जो अभी रिलीज हुआ है एफिशिएंसी मेजर्स, ये सारे की एनर्जी एफिशिएंसी प्रोग्राम्स के लिए हुआ है. नेक्स्ट क्वेश्चन सेज, consider the following. Taiwan is a member of World Health Organization. Taiwan has never formally declared independent from China because Taiwan is not self-governed. उसके अंदर आपको क्या ढूंढना है? You need to find out the incorrect choices. So the correct answer here is both statements are incorrect. क्यों both statements incorrect क्यों है और ये न्यूज़ में क्यों था? क्योंकि अभी रिसेंटली ताइवान को बहुत सपोर्ट मिला है उसको वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में ऐड कराने के लिए. अभी तक वो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर नहीं है, लेकिन अभी हाल फिलहाल में ही उसको वर्ल्ड हेल्थ असेंबली के अंदर मिनिस्ट्रियल मीटिंग के लिए इनवाइट किया गया है. वर्ल्ड हेल्थ असेंबली क्या है? एक गवर्निंग बॉडी है WHO की. और सेकेंड स्टेटमेंट देख लेते हैं, ये क्यों गलत है कि इट इज़ नेवर फॉर्मली डिक्लेयर इंडिपेंडेंट. ये बात सही है, आधी बात कि इसको कभी भी इंडिपेंडेंट डिक्लेयर नहीं किया गया है फॉर्मली, लेकिन उसका रीज़न गलत है कि ताइवान इज़ नॉट सेल्फ गवर्न. ताइवान सेल्फ गवर्न है, फिर भी उसको अभी तक फॉर्मली डिक्लेयर नहीं किया गया है इंडिपेंडेंट. दैट इज़ द रीज़न बोथ द स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट. The detailed explanation is here. Moving on to the next question, it says, consider the following statements about Netravali Sanctuary. Netravali Sanctuary के लिए एक question. It says, this sanctuary is located in southeastern Goa and constitutes one of the vital corridors of the Western Ghats. Second statement says, Netruli is an important tributary of river Zaveri, which is a tidal river of Goa. Netravali Sanctuary is different. Netruli is a river. So both are interrelated. So that is the reason we have occupied in the same statements. So दो statement है, एक नेत्रावली वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी के लिए और एक नेत्रुली रिवर के लिए कि इट इज़ अ ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर जवेरी जो कि टाइडल रिवर है गोवा की. So you need to find out which is the correct option out of this. So the correct option is both the statements are correct. नेत्रावली वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी साउथ ईस्टर्न गोवा में ही है. और अभी न्यूज़ में क्यों थी है? क्योंकि यहाँ पे एक ब्लैक पैंथर स्पॉट किया गया, पहली बार ऑन कैमरा ब्लैक पैंथर देखा गया है. और नेत्रुली रिवर जाती है इसके थ्रू और ये इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है रिवर जुवेरी की. और ये भी सही बात है कि रिवर जुवेरी क्या है? टाइडल रिवर है गोवा की. जब हाई टाइड होती है तो ये रिवर बन जाता है, नहीं तो नहीं होता है. सो जो रिवर टाइड के बेसिस पे बनती हैं वो बोलते हैं हम उन्हें टाइडल रिवर. So the detailed explanation is here. Next question on your screen says, consider the following. Chariot festival is associated with Lord Jagannath and celebrated every year at West Bengal. Jagannath temple is a part of Char Dham pilgrimages. ये न्यूज़ में क्यों था हम आपको बताएंगे अभी, क्योंकि जो चैरियट फेस्टिवल है, चैरियट मतलब रथ, तो उसकी रथ कंस्ट्रक्शन के लिए लॉकडाउन में भी परमिशन मिल गई है उन लोगों को कि वो लोग अपने रथ का कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं इकट्ठा होके, बट कीपिंग सोशल डिस्टेंसिंग इन माइंड. सो उसकी वजह से ये क्वेश्चन हमने डाला है. सो यू नीड टू फाइंड आउट कि इसके अंदर से इनकरेक्ट कौन सा है. ये लॉर्ड जगन्नाथ से एसोसिएटेड है और हर साल वेस्ट बंगाल में होता है, या फिर ये चार धाम पिलग्रिमेज का एक पार्ट है. सो यू नीड टू फाइंड आउट विच इज़ द इनकरेक्ट वन. सो द इनकरेक्ट ऑप्शन इज दिस फर्स्ट स्टेटमेंट. वाई? क्योंकि कहाँ होता है ये? वेस्ट बंगाल में नहीं होता, उड़ीसा में होता है. जगन्नाथ जी की पूजा होती है हर साल उड़ीसा में, और पुरी जगन्नाथ. और ये जगन्नाथ जो है हमारे चार धाम का एक पार्ट है. चार धाम आप बोल सकते हो बद्रीनाथ, द्वारका, पुरी, रामेश्वरम, जो चारनाथ के दर्शन हम लोग करने जाते हैं उसका एक पार्ट है जगन्नाथ टेम्पल. सो दैट्स ट्रू. दिस इज द डिटेल एक्सप्लेनेशन. अभी देख लीजिए आप, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने इनको चैरिट बनाने का परमिशन दिया है, लेकिन विद सोशल डिस्टेंसिंग. बट लेट्स सी क्या होता है. इनको परमिशन तो मिल गया है. 22 जून को ये यात्रा निकलने वाली है, ऐसा अभी न्यूज़ है. बट नहीं पता कि कोविड की वजह से क्या सर्कमस्टांसेस रहते हैं, होगी या नहीं होगी. सो दैट्स अ डिफरेंट मैटर. नेक्स्ट क्वेश्चन सेज, consider the following statements. Indian Sundarbans has been accorded the status of wetland of international importance under the Ramsar Convention, whereas Bangladesh Sundarbans got the status of Ramsar Site in 92. इसका मतलब है कि इंडियन सुंदरबंस को अभी रिसेंटली मिला है. थोड़ा स्टेटमेंट में कन्फ्यूजन है. सो इट सेज इंडियन सुंदरबंस को जो वेटलैंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस का टैग है वो अभी रिसेंटली मिला है, बट रामसर कन्वेंशन को बट बांग्लादेश सुंदरबंस को मिल चुका है 1992 में. इज दैट करेक्ट? The Sundarbans Delta is the only mangrove forest in the world inhabited by tigers. ये सुंदरबन डेल्टा एक ही मैंग्रोव फॉरेस्ट है पूरे वर्ल्ड में जहाँ पे टाइगर्स हैं.
Indian Sundarbans constitute over 80% of the country's total mangrove forest area. जो इंडिया के सुंदरबंस हैं वो 80% मैंग्रोव फॉरेस्ट कवर करते हैं इंडिया का. So we need to find out which is the correct option. Here the correct option is option first and second. Why? क्योंकि इंडिया सुंदरबंस को अभी मिला है, ये सही बात है, और बांग्लादेश के सुंदरबंस को 92 से मिला हुआ है. उसके बाद ये ओनली मैंग्रोव फॉरेस्ट हैं जहाँ पे टाइगर्स हैं इन द वर्ल्ड. थर्ड स्टेटमेंट इनकरेक्ट क्यों है? क्योंकि डेटा मैनिपुलेट हुआ है. 80% नहीं है, 60% टोटल मैंग्रोव फॉरेस्ट है ये हमारा इसका टोटल कंट्री का 60. So this is the detailed explanation. You can see कि 60% of the total mangrove forest है इंडिया का सुंदरबन जो है 60% of the country के total mangrove को cover करते हैं. बाकी सारी details is already written here, so you can read. And if you have any issues, I've already explained the details, and still if you have any issues after reading this, you can come back to me via the Telegram channel, which is pinned in the comment section below. Next question says, consider the following statements about कैलाश मानसरोवर यात्रा रूट. कैलाश मानसरोवर यात्रा रूट के ऊपर कोई कंस्ट्रक्शन चली है अभी, इसी के लिए ये न्यूज़ में है. सो एक नया लिंक रोड फ्रॉम इंडिया टू चाइना हैज़ बीन इनॉग्रेटेड फॉर द पिलग्रिम्स टू कैलाश मानसरोवर बाय बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन. एक नया रोड इनॉग्रेट किया गया है पिलग्रिम्स के लिए कैलाश मानसरोवर, और बनाया किसने है इसको? बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने बनाया है. एंड इट पासिस थ्रू काला पानी विच इज़ अ डिस्प्यूट बिटवीन इंडिया एंड चाइना. ये जो आपका रूट जाता है कैलाश मानसरोवर के लिए, ये काला पानी से होके जाता है, जो कि काला पानी एक जगह का नाम है जो कि इंडिया और चाइना के बीच में डिस्प्यूट है. सो हियर इन द फर्स्ट क्वेश्चन द स्टेटमेंट सेज इट हैज़ बीन इनॉग्रेटेड फॉर द पिलग्रिम्स. इनॉग्रेट हुआ है, इट बाय डजंट मीन कि वो इनॉग्रेट बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन से हुआ है. द स्टेटमेंट मीन्स कि उसको बनाया बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने है. जो ये पाथ बनाया है, जो रास्ता बनाया है, ये बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने बनाया, और उसका इनॉग्रेशन अभी रिसेंटली हुआ है. सो फर्स्ट स्टेटमेंट मीन्स दिस. सेकंड बोलता है कि जो काला पानी है वो इंडिया और चाइना के बीच में डिस्प्यूट है, और ये रास्ता काला पानी से होके जाता है. सो यू नीड टू फाइंड आउट विच इज़ द करेक्ट चॉइस. सो करेक्ट चॉइस इज ऑप्शन ए विच इज़ दिस कि इंडिया से चाइना के बीच में ये रूट बना है नया. इसको अभी वर्चुअली इनॉग्रेट किया गया है, और ये बनाया किसने है? बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने बनाया है. ये काला पानी से जाता है. ये सही बात है कि ये रूट काला पानी से पास होता है, लेकिन काला पानी किस किस के बीच में डिस्प्यूट है? इंडिया और चाइना के बीच में नहीं है गाइज. प्लीज़ आंसर सुनने से पहले अपना आंसर लिख लो एंड क्लैरिफाई कि सही है या नहीं है, क्योंकि ये बेसिक चीज़ें हैं, ये पता होनी चाहिए. सो ये जो है हमारा डिस्प्यूट किस किस के बीच में है? नेपाल के बीच में है. नेपाल ने क्लेम किया है, और सबसे बड़ी बात यह है कि पूरा पाथ बनने के बाद नेपाल ने उंगली करी है इसके अंदर कि भाई ये तो हमारा डिस्प्यूटेड एरिया है. उससे पहले जब वो बन रहा था पाथ, हम बना रहे थे वहाँ पे इंडिया से चाइना जाने के लिए, मानसरोवर की यात्रा के लिए, जब ये पाथ बन रहा था तब नेपाल ने इसके बीच में कुछ नहीं बोला. अभी रिसेंटली जब पूरा पाथ का इनॉग्रेशन हो गया है तब उन्होंने बोला है कि लिंक रोड जो है लिपुलेख पासेस से वो नेपाल की टेरिटरी है. ये जो काला पानी दिख रहा है आपको मैप के अंदर, ये नेपाल का टेरिटरी है. नेक्स्ट क्वेश्चन सेज कंसिडर द फॉलोइंग अबाउट स्ट्रिंजेंसी इंडेक्स. स्ट्रिंजेंसी इंडेक्स अभी रिसेंटली रिलीज हुआ है. सो ये कौन रिलीज करता है? किसने क्रिएट किया है? वर्ल्ड बैंक ने क्रिएट किया है. अकॉर्डिंग टू दिस इंडेक्स, इंडिया हैड वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट लॉकडाउन मेजर्स इन द वर्ल्ड. जो लॉकडाउन हुआ है कोविड में, वो स्ट्रॉन्गेस्ट है इन द वर्ल्ड, वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट है अकॉर्डिंग टू दिस इंडेक्स. सो नीड टू फाइंड आउट विच इज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट. सो इनकरेक्ट स्टेटमेंट इज हियर इज स्टेटमेंट 1 ओनली, क्योंकि इसको वर्ल्ड बैंक नहीं क्रिएट किया है. इसको किसने क्रिएट किया है? इट इज़ क्रिएटेड बाय ऑक्सफर्ड यूनिवर्सिटी. यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफर्ड ने इसे क्रिएट किया है, और बोला है कि इंडिया का जो लॉकडाउन था एकदम इनिशियल फेज में, इट इज़ दी वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट लॉकडाउन मेजर्स इन द वर्ल्ड. सो ये स्ट्रेंजेंसी इंडेक्स बेसिकली इसी चीज़ के लिए निकला है कि कौन सी कंट्री ने क्या मेजर्स लिए हैं, लॉकडाउन कब किया, और कोविड को से बचने के लिए क्या क्या मेजर्स लिए हैं. सो आप इस ग्राफ से देख सकते हो कि इंडिया का क्विक रिस्पॉन्स कहाँ पर है, और इंडिया को 100 स्कोर मिला है इसके अंदर. और आप देख सकते हैं यूनाइटेड स्टेट्स और ये सब को जो मिल रहा है 66 और 71, जिन्होंने अपने लॉकडाउन के मेजर्स को मतलब लॉकडाउन को सीरियसली नहीं लिया. सो इंडिया गॉट 100 पॉइंट्स इन दिस रिपोर्ट, in this index you can say. Next question says consider the following statements with respect to the project CARD. CARD का full form है Consortium for Affordable and Rapid Diagnostics. So ये क्या करता है? It uses artificial intelligence to search data and identify existing drugs and food molecules that could benefit COVID-19 patients. तो ये उनकी ड्रग्स ढूंढ रहा है क्या?
सेकेंड स्टेटमेंट बोलता है इट वॉज लॉन्च बाय नीति आयोग एंड द डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, इन दोनों ने मिलकर लॉन्च किया है प्रोजेक्ट कार्ड. सो विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स इज करेक्ट? कौन सा इसके अंदर करेक्ट है ये पूछ रहा है. सो सेकेंड स्टेटमेंट इज करेक्ट बट फर्स्ट इज इनकरेक्ट. क्यों फर्स्ट इनकरेक्ट क्यों है? क्योंकि ये जो कार्ड का प्रोग्राम है ये क्या करता है, ये टेस्ट किट बना रहा है कोरोना वायरस के लिए, टेस्ट किट. क्योंकि हमारे पास चाइना से जो किट्स आई थी वो इतनी फीजिबल नहीं है, उनसे टेस्टिंग नहीं हो पा रही है. सो हम अपनी टेस्टिंग किट्स कोविड के लिए बनाने के लिए ये प्रोजेक्ट है प्रोजेक्ट कार्ड, और नीति आयोग और डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी का जॉइंट प्रोजेक्ट है. And you can see the detailed explanation कि it aims to scale up India's capacity to make coronavirus की testing kits. Next question says match the following border disputes with the country. कौन सा border dispute किस country के साथ है? अक्साई चिन किसके साथ है? सियाचिन ग्लेशियर, कच्छतीवू आइलैंड एंड काला पानी. So you need to pause the video and try to answer which is the correct choice. So the correct choice here is second, third and fourth. सियाचिन ग्लेशियर कौन से कंट्री के साथ डिस्प्यूट में है? पाकिस्तान के साथ. कच्छतीवू आइलैंड श्रीलंका के साथ, और काला पानी तो हमने अभी पढ़ा है नेपाल के साथ डिस्प्यूट में है. सो आप इसके बेसिस पे एलिमिनेट भी कर सकते हो. अगर आपको इसमें से एक या दो भी पता है सो यू शुड नो द टेक्निक ऑफ एलिमिनेशन विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ऐसा नहीं होगा कि आपको 100% क्वेश्चन आते होंगे. एलिमिनेशन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. और आप एलिमिनेशन टेक्निक को कैसे इंप्रूव कर सकते हो? जस्ट बाय सॉल्विंग नंबर ऑफ मॉक्स एंड इवेल्युएटिंग योर सेल्फ. लाइक अगर आप एलिमिनेट कर रहे हो तो 50-50 हो पा रहा है या पूरा गलत हो पा रहे हैं या फिर एकदम अंधा तुक्का लग रहा है. सो दैट मीन्स यू नीड टू एनालाइज योर सेल्फ. फर्स्ट ऑप्शन क्यों गलत है? अक्साई चिन किसके बीच में डिस्प्यूट है? चाइना के साथ है, ये म्यांमार के साथ नहीं है. सो देयर यू गो. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? Consider the following. Recently released sample registration system is used to record birth and death rate only. Sample registration system अभी रिलीज हुआ है हमारा, वो क्या रिकॉर्ड करने के लिए रिलीज हुआ है? बर्थ और डेथ रेट को सिर्फ, या फिर इट्स अ वेबसाइट रिलीज्ड बाय रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया. सो कौन सा स्टेटमेंट इसके अंदर से करेक्ट है? पॉज अगेन एंड ट्राई टू आंसर. सो द करेक्ट इसके अंदर से हमारा जो स्टेटमेंट है करेक्ट कौन सा है ये देखिए. कोई भी इसके अंदर आपको करेक्ट नहीं है स्टेटमेंट. क्यों कोई भी करेक्ट नहीं है? आपको ये दिखेगा कि अरे ये तो रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया ने ही लॉन्च किया है, सो वाई दिस इज नॉट करेक्ट? क्योंकि दिस इज नॉट अ वेबसाइट, दिस इज अ डेमोग्राफिक सर्वे, दिस इज नॉट अ वेबसाइट जो कि रिलीज हुई है. सो दैट इज द रीजन सेकेंड स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट. और फर्स्ट स्टेटमेंट क्यों गलत है? क्योंकि ये बर्थ और डेथ रेट के साथ साथ और चीज़ें भी सर्वे के अंदर कंसिडर कर रहा है. क्या क्या चीज़ें हैं? बर्थ रेट, मोर्टैलिटी रेट, इन्फेंट मोर्टैलिटी रेट, डेथ रेट, अदर फर्टिलिटी एंड मोर्टैलिटी इंडिकेटर्स एट नेशनल एंड सब नेशनल लेवल. सो ये मल्टीपल चीज़ों को कंसिडर कर रहा है इन दिस सर्वे. ठीक है. और इसके अंदर इस सर्वे के अंदर अगर आप देखें तो बिहार ने फिर से टॉप किया है बर्थ रेट में. बिहार में फिर से पॉपुलेशन ज़्यादा बढ़ रही है, सबसे ज़्यादा. नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन सेज कंसिडर द फॉलोइंग अबाउट जीआई टैग्स. एक जीआई टैग्स बहुत ज़्यादा अभी हमारे न्यूज़ में आ रहे हैं. हमने कल के वो वीडियो में भी देखा था जीआई टैग्स का एक क्वेश्चन, और अभी आज भी 2 टैग्स हमें नए मिले हैं. इसके लिए थोड़ा सा बेसिक जीआई टैग का क्वेश्चन है. द फर्स्ट प्रोडक्ट टू गेट अ जीआई टैग इन इंडिया वॉज दार्जिलिंग टी इन 2004. द टैग विच इज़ वैलिड फॉर अ पीरियड ऑफ 15 years फॉलोइंग विच इट कैन बी रिन्यूड. ये बोलता है कि जीआई टैग 15 साल के लिए वैलिड है और उसके बाद भी रिन्यू हो सकता है. थर्ड स्टेटमेंट बोलता है टैगलाइन जो है जो जीआई लोगों के नीचे लिखी रहती है वो है इनवैल्यूएबल ट्रेजर्स ऑफ इंडिया. फोर्थ है रिसेंटली सोहराय कोवर पेंटिंग गॉट द जीआई टैग इन झारखंड. सो सोहराय पेंटिंग को कहाँ का टैग मिला है? कहाँ मिला है जीआई टैग? झारखंड में. सो लेट अस फाइंड आउट व्हाट इज द सो द करेक्ट आंसर हियर इज. करेक्ट आंसर मतलब इसके अंदर आपसे क्या पूछा गया है? इनकरेक्ट चॉइस. कौन कौन से इनकरेक्ट हैं? सेकेंड और थर्ड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है. सो बी इज द करेक्ट ऑप्शन. ये दोनों इनकरेक्ट क्यों है? क्योंकि इसको 10 साल का टैग मिलता है, जो टैग मिलता है वो 10 साल के लिए वैलिड होता है और उसके बाद रिन्यू हो सकता है. और थर्ड स्टेटमेंट क्यों गलत है? इसकी टैगलाइन ऑब्वियसली टैगलाइन क्या है? इनवैल्यूएबल ट्रेजर्स ऑफ इनक्रेडिबल इंडिया. ये टैगलाइंस जनरली नहीं पूछता है, बट स्टिल देयर आर लॉट ऑफ जीआई टैग्स गिवन रिसेंटली. सो ये क्वेश्चन बनाया गया जिससे कि एक बार आप के दिमाग में एक बार आंखों के आगे से निकल जाए कि ये टैगलाइन है क्या. रटने की ज़रूरत नहीं है. एक बार कई चीज़ें होता है आप देख लेते हो और एग्जाम में आती हैं, सो स्ट्राइक कर जाती हैं. सो इनवैल्यूएबल ट्रेजर्स ऑफ इनक्रेडिबल इंडिया है इसकी टैगलाइन, जो कि लोगों के नीचे लिखी रहती है. और ये दो चीज़ों को टैग मिला है अभी. क्या क्या है? एक तो तेलिया रुमाल है जिसको तेलंगाना में मिला है. दिस इज़ द तेलिया रुमाल. आप देख सकते हो मफलर के जैसा.
दूसरा ये पेंटिंग है सोहराई कवर पेंटिंग, इसको झारखंड में मिला है, जिसमें आप एनिमल्स और फ्लावर्स की जो पेंटिंग है, दिस इज सोहराई कवर पेंटिंग. Next question says, in 2012, World Health Assembly identified nutrition targets to met by 2025. According to the Global Nutrition Report 2020, India is likely to miss 4 targets. ये question क्या बोल रहा है? 2012 में वर्ल्ड हेल्थ असेंबली जो कि WHO की गवर्निंग बॉडी है, उसने आइडेंटिफाई किए थे न्यूट्रिशन टारगेट, अराउंड 6 से 7 न्यूट्रिशन टारगेट आइडेंटिफाई किए थे कि ये अचीव करने हैं बाय 2025. अभी रिसेंटली एक रिपोर्ट रिलीज हुई है, ग्लोबल न्यूट्रिशन रिपोर्ट 2020, उससे क्या पता चलता है कि इंडिया अपने 4 टारगेट मिस कर रहा है, उन 6 में से 4 टारगेट मिस करने वाला है. सो वो 4 टारगेट जो वो मिस करने वाला है वो कौन कौन से हैं? आउट ऑफ दिस आइडेंटिफाई: stunting, exclusive breastfeeding, low birth weight, anemia among women of reproductive age. So the correct choice here is stunting भी है जो कि हम मिस कर रहे हैं, हम पूरा नहीं कर पा रहे हैं ऐसा लग रहा है टारगेट 25 तक. एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग भी नहीं पूरा हो पाने वाला है, और जो हमारा है एनीमिया अमंग द विमेन ऑफ रिप्रोडक्टिव एज. ये लो बर्थ वेट इज इनकरेक्ट हियर. इसकी जगह एक देख लेते हैं फोर्थ ऑप्शन क्या है, जो चौथा टारगेट हम मिस कर रहे हैं. वो है हमारा दिस स्टंटिंग तो हम मिस कर रहे हैं, एनीमिया, चाइल्ड ओवरवेट और हम मिस कर रहे हैं कि चाइल्ड की ओवरवेट हम नहीं कंट्रोल कर पा रहे हैं बाय 2025. सो दीज आर द 4 टारगेट्स जो कि इंडिया मिस करने वाला है अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट. बाय 2025 तक हम अचीव नहीं कर पाएंगे. और 2012 में जो वर्ल्ड हेल्थ असेंबली ने जो डिसीजन मेकिंग बॉडी है WHO की, उसने जो टारगेट्स दिखाए थे 6 टारगेट्स, दीज आर ऑल्सो गिवन हियर कि क्या 6 टारगेट्स आपको 2025 तक अचीव करने हैं. So next up we have Italian hydroelectric project is recently recommended by central government in which state? कौन से स्टेट में ये प्रोजेक्ट का रिकमेंडेशन आया है कि ये इटालियन हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट बनने वाला है? सो वो स्टेट का नाम है अरुणाचल प्रदेश. कहाँ बनने वाला है? सेंट्रल गवर्नमेंट ने रिकमेंड किया है अरुणाचल प्रदेश में, बोला है कि 7 साल में ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा. बेसिक इन्फॉर्मेशन. नेक्स्ट क्वेश्चन सेज, Italian hydroelectric project envisages construction of 2 dams over which rivers? So ये जो हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है इसके अंदर 2 डैम्स बनने वाले हैं. सो वो 2 डैम्स कौन कौन सी रिवर पे बनेंगे? ब्रह्मपुत्र या बैरक, धीर और तांगिन, दिबांग और लोहित, या सुभानचरी और तीस्ता. सो कौन से वो जो 2 रिवर्स हैं जिनके ऊपर ये 2 डैम बनने वाले हैं? सो वो आंसर इसका क्वेश्चन का है दीर एंड तांगिन. ये दीर और तांगिन पे बनने वाले हैं. ये दोनों रिवर्स किसकी ट्रिब्यूटरी हैं? दिबांग की. सो कभी आपसे किसी एक क्वेश्चन में सिंगल स्टेटमेंट पूछ लिया जाए कि इटालियन हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट कौन सी रिवर पे बन रहा है, सो इट कैन बी दिबांग, इट कैन बी ब्रह्मपुत्र, इट कैन बी दीर एंड तांगिन, क्योंकि ये सब्सिडरीज इसकी ट्रिब्यूटरीज ही आती जा रही है. ब्रह्मपुत्र के अंदर आएगी आपकी दिबांग, दिबांग के अंदर आ गई दीर और तांगिन. सो इन तीनों में से कुछ भी आंसर हो सकता है, बट हियर ऑप्शन ए इज इनकरेक्ट क्योंकि बराक रिवर ऑप्शन में बराक पे नहीं बन रहा है. ठीक है, सो हियर यू हैव कि ये दिबांग रिवर पे बन रही है. दिबांग रिवर की ट्रिब्यूटरीज दीर और तांगन पे बन रही है, और दिबांग किसकी है? ब्रह्मपुत्र की. सो ब्रह्मपुत्र ऑप्शन में आएगा. अगर सिर्फ ब्रह्मपुत्र आता है सो ब्रह्मपुत्र इज द करेक्ट चॉइस. सिर्फ दिबांग आता है सो दिबांग इज द करेक्ट चॉइस. और अगर नहीं आए इन दोनों में से कोई, सो दीर और तांगन ही करेक्ट चॉइस होंगे. ओके, लेकिन इसका एक कंसर्न भी है. इस प्रोजेक्ट का कंसर्न क्या है कि 18 विलेजेस जिसमें 285 फैमिलीज रहती हैं, ये अफेक्ट होंगी इन डैम से. और देखो सबसे ज़्यादा बड़ी बात क्या है, इतने सारे ट्रीज और जो ग्लोबल एंडेंजर्ड मैमल स्पीसीज है वहाँ पे, उनको इफेक्ट करेगा ये. सो ये मेजर कंसर्न है इस प्रोजेक्ट के. नेक्स्ट क्वेश्चन सेज, कंसिडर द फॉलोइंग अबाउट गांधी पीस प्राइज. गांधी पीस प्राइज है, अभी हम लास्ट ईयर पुराने 4-5 सालों का एक साथ दे दिया गया था जब गवर्नमेंट जागी थी हमारी. सो अभी ये पीस प्राइज के बारे में क्वेश्चन है. द अवार्ड इज गिवन फॉर द इंडिविजुअल्स ओनली हु आर इन्वॉल्व इन सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल ट्रांसफॉर्मेशन थ्रू नॉन वायलेंस. ये बोलता है कि सिर्फ इंडिविजुअल्स को मिलता है जो कि सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल ट्रांसफॉर्मेशन में इन्वॉल्व है थ्रू नॉन वायलेंस. सेकेंड सेज इट इज ओपन टू ऑल रिगार्डलेस ऑफ नेशनैलिटी, क्रीड, रेस और सेक्स. सबके लिए एप्लीकेबल है, चाहे कोई किसी भी नेशनैलिटी का है, किसी भी रिलीजन को मानता है, कोई भी रेस है, कोई भी सेक्स है, सबके लिए एप्लीकेबल है. सो व्हाट इज द करेक्ट चॉइस? द करेक्ट आंसर इज इट इज आस्किंग द इनकरेक्ट वन. सो इनकरेक्ट क्या है इसके अंदर? ओनली फर्स्ट इज इनकरेक्ट, सेकंड सही है, ये सबके लिए एप्लीकेबल है. और सिर्फ इंडिविजुअल्स के लिए नहीं है, ये सबके लिए. इट इज ओपन फॉर इंडिविजुअल्स, एसोसिएशंस, इंस्टीट्यूशंस और ऑर्गेनाइजेशंस, किसी ग्रुप को भी मिल सकता है. नेक्स्ट सेज, consider the following about creation and harmonious application of modern processes for increasing the output and national strength.
क्या है ये? चैम्पियंस है, चैम्पियंस का फुल फॉर्म लिखा है ऊपर। चैम्पियंस पोर्टल के बारे में ये स्टेटमेंट है। इट इज़ रिसेंटली लॉन्च बाय मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर एंड टूरिज्म। किसने लॉन्च किया है? इट इज़ लॉन्च टू सपोर्ट, एक्सप्लोर एंड प्रमोट MSMEs। इनके सपोर्ट के लिए, इनको और इनके लिए और चीज़ों को एक्सप्लोर करने के लिए और MSMEs को प्रमोट करने के लिए लॉन्च किया गया है ये पोर्टल। सो व्हाट इज़ द करेक्ट चॉइस? सो द करेक्ट आंसर इज सेकेंड स्टेटमेंट ओनली। हाँ, ये MSME के लिए लॉन्च हुआ है, सपोर्ट, एक्सप्लोर और प्रमोट के लिए। और किसने लॉन्च किया है? मिनिस्ट्री ऑफ MSME, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस की मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है चैम्पियंस पोर्टल। यू कैन हैव अ लिटिल बिट एक्स्ट्रा डिटेल हियर कि सपोर्ट क्या चीज़ में करेगा, एक्सप्लोर कैसे करेगा और प्रमोट कैसे करेगा दिस पोर्टल टू MSME. Next question says, consider the following about tour of duty scheme. Tour of duty scheme क्या है? It's a scheme in which Indian Army is allowing common citizens to join Indian Army for 3 years. It is a voluntary engagement. Anybody can go and join the army without facing the difficulty of the process of appointment. कि कोई process of appointment ही नहीं है। जैसे आर्मी में जाने के लिए तो बहुत डिफ़िकल्ट प्रोसेस होता है, तो अकॉर्डिंग टू दिस ड्यूटी टूर ऑफ स्कीम कोई ज़्यादा डिफ़िकल्टी नहीं है प्रोसेस ऑफ अपॉइंटमेंट में। ईजिली कोई भी सिविलियन नॉर्मल बंदा जाके ज्वाइन कर सकता है आर्मी फॉर 3 years अकॉर्डिंग टू दिस टूर ऑफ ड्यूटी स्कीम. सो विच इज़ द करेक्ट ऑप्शन हियर? सो द करेक्ट चॉइस इज ऑप्शन स्टेटमेंट 1 ओनली, कि हाँ ये बोलती है टूर ऑफ ड्यूटी स्कीम अभी इंडियन आर्मी ने एक टेस्ट ट्रायल के लिए 1000 या 100 लोगों को बुलाएंगे. 3 साल के लिए आर्मी में कोई भी रह सकता है, लेकिन अपॉइंटमेंट प्रोसेस सेम होगा जैसे नॉर्मल बंदे का अपॉइंटमेंट होता है. सो ये किस लिए है? कि लोग परमानेंट आर्मी में जाके सेटल नहीं होना चाहते हैं, परमानेंट आर्मी का काम नहीं करना चाहते हैं. सो जो हमारा यूथ है, टैलेंटेड यूथ, वो 3 साल के लिए जाके वहाँ डिवोट कर सकता है अपना टाइम. और वापस आके एक सर्वे किया गया था कि जो लोग आर्मी वाले बंदे हैं उनको कॉरपोरेट्स या कोई और कंपनीज जल्दी प्रेफर करती हैं एज कम्पेयर टू द नॉर्मल सिविलियन. सो उनके लिए जॉब्स भी सिक्योर रहेंगी अगर वो 3 साल का आर्मी में एक्सपीरियंस लेकर आएंगे. सो दिस इज़ टूर ऑफ ड्यूटी स्कीम. इसके बारे में जो भी मैंने बताया आपको यहाँ पे भी मिल सकता है. 100 ऑफिसर्स या 1000 मैन को कंसिडर किया जा रहा है रिक्रूटमेंट के लिए फॉर द टेस्ट ऑफ दिस प्रोजेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन सेज, National Technology Day is celebrated on May 11th every year to mark which of the following advancement. 11 मई को हमेशा नेशनल टेक्नोलॉजी डे सेलिब्रेट होता है. क्यों 11 मई को होता है? क्या क्या हुआ था 11 मई को जो ये सेलिब्रेट होता है? सो दीज आर द 3 ऑप्शंस. इंडिया ने 3 न्यूक्लियर बॉम्ब डिटोनेट करे थे इन इंडियन आर्मी पोखरण टेस्ट रेंज में. हंसा 3 जो हमारी इंडिजिनियस एयरक्राफ्ट था पहला, उसको टेस्ट किया गया था इसी दिन. और जो त्रिशूल हमारी शॉर्ट रेंज मिसाइल है उसको पहली बार टेस्ट किया गया था. टेस्ट फायरिंग हुई थी सेम डे. सो इसके अंदर पूछा है क्या इनकरेक्ट है ऑप्शन. सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी, मतलब कोई भी इनकरेक्ट नहीं है. ये तीनों ही इंसिडेंट्स या बोल सकते हो आप अचीवमेंट्स थे, हमारे एडवांसमेंट थे टेक्नोलॉजी, जिसकी वजह से हम 11 मई को हर साल नेशनल टेक्नोलॉजी डे सेलिब्रेट करते हैं. Next question on your screen says, the Global Forest Resources Assessment Report recently seen in the news is published by. कौन publish किया है ये report? Global Forest Resource Assessment Report. UNFAO, that is Food and Agricultural Organization, UN Forum on Forest, International Union of Forest Research Organization, या फिर इनमें से कोई भी नहीं. So correct answer is option A. किसने publish किया है? UNFAO, Food and Agricultural Organization. Next question on your screen says, what is Y2K bug? Y2K bug क्या है? ये अभी रिसेंटली न्यूज़ में था. क्या है Y2K bug? कोई वायरस है जो डिटेक्ट हुआ है नया, या फिर कोई एंटीबॉडी है जो ह्यूमंस के अंदर मिली है उसका नाम है, या कोई एंटीवायरस है जो कोविड को मारने के लिए इन्होंने बनाया, या इनमें से कोई भी नहीं. सो हियर द करेक्ट चॉइस इज ऑप्शन डी. Y2K बग इनमें से कुछ भी नहीं है. Y2K बग है क्या? एक कंप्यूटर फ्लॉ था इन 1900s, जो कि कंप्यूटर में डेट आप लास्ट के 2 डिजिट्स डालते थे. फॉर एग्जांपल 1901 है तो 01, 02 ईयर ऐसे डालते थे, सिर्फ लास्ट के 2 डिजिट्स. सो ये रेफर भी उसी को करता है. Y2 और K इज 1000, सो 3 zeros, सो उसी को डिनोट करता है. ये ईयर का एरर था, कंप्यूटर में फ्लॉ था इन 1900s. सो डिटेक्ट हुआ था कि अब 1999 के बाद अगर 2000 आएगा और हम सिर्फ 00 लिखेंगे तो कंप्यूटर इसको 1900 डिटेक्ट कर लेगा एक्सेप्ट 2000. सो दिस वाज द बग. नेक्स्ट क्वेश्चन सेज, डायमर भाषा डैम इज क्रिएटेड ऑन. कौन सी रिवर पे बना है ये डैम? डायमर भाषा डैम कौन सी पे बन रहा है?
इंडिया इंदस पे बनेगा जो इंडिया में है, इंदस पाकिस्तान वाली पे बनेगा, दोनों पे मिला के बन रहा है या किसी पे भी नहीं बन रहा? सो द करेक्ट ऑप्शन हियर इज ये इंडिया वाली पे नहीं बन रहा है. इट इज़ ऑन इंदस रिवर इन पाकिस्तान. आप लोकेशन भी देख सकते हो. डायमर भाषा डैम कहाँ बनेगा? गिलगित बाल्टिस्तान का कल भी एक क्वेश्चन था. सो दिस इज ऑन हायर इम्पॉर्टेंस. इसके बारे में डिटेलिंग पढ़ लीजिएगा. गिलगित बाल्टिस्तान के बारे में कल की स्लाइड में भी एक क्वेश्चन था जो कल की जो फर्स्ट वीक का मे के करंट अफेयर्स थे उसमें भी गिलगित बाल्टिस्तान आया था डिस्प्यूट में. सो दिस इज इम्पॉर्टेंट कंसर्न हियर. और दिस वॉज द लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे. इसके बाद हम थोड़े से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देख लेते हैं. क्या और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बचे हैं? IIT दिल्ली की एक स्टार्टअप है नैनो सेफ सोल्यूशंस. उसने सेफ मास्क बनाया है विच इज़ वॉशेबल. धो के आप दोबारा यूज़ कर सकते हो. एस टू एंजाइम, अभी कुछ एक स्टडी हुई है जिसके हिसाब से पता चलता है कि जो मेन है, मेल पॉपुलेशन इज मोर वल्नरेबल टू कोविड-19. नेक्स्ट इज ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स रिलीज हुआ है जिसमें इंडिया का रैंक 2 पॉइंट्स बढ़ गया है. समर्थ एक ई गवर्नमेंट का प्लेटफॉर्म है. एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग, लोग जो आपके एंटरप्राइजेस चल रहे हैं उनके रिसोर्स की प्लानिंग के लिए ये एक ई गवर्नमेंट प्लेटफॉर्म बनाया है. वेस्ट बैंक का एनेक्सेशन प्लान कर रहा है यूएस. सर्जिंग ग्लेशियर्स इन काराकोरम रेंज के अंदर ग्लेशियर्स सर्ज हो रहे हैं और वो भी इरेग्युलर सर्जिंग है, नॉर्मल नहीं है. सो दैट वाज इन न्यूज़. साल फॉरेस्ट टॉर्टॉइस स्पीसीज वाज इन न्यूज़. यू कैन चेक द IUCN स्टेटस ऑफ साल फॉरेस्ट टॉर्टॉइस. जनरली क्वेश्चंस के अंदर मिला के IUCN स्टेटस पूछ लिया जाता है. लास्ट वन इज स्मॉल पॉक्स के पोस्टेज स्टैम्प रिलीज हुए हैं क्योंकि इसका जब स्मॉल पॉक्स इंडिया से इराडिकेट हुआ था टोटली, उसका 40th एनिवर्सरी के ओकेजन पे स्मॉल पॉक्स के पोस्टेज स्टैम्प रिलीज हुए. सो दिस वाज फॉर द डे गाइज. Thank you so much for watching, and if you like this video you can like it and subscribe to the channel so that you can have the notification of the next videos, and share it with your friends so that they can also get the benefit of the amazing current affairs here. And we will be back soon with the PIB current affairs questions in the form of MCQs only, not the news. We will give you the current affairs from PIB. And also do let me know through the comment section like if you want to have the CSAT classes as we used to do on an academy. So we can do for that CSAT as well. Also there is a Telegram link which is written here and in the comment section as well. If you want to join that group so that you can have the notification, join it. And if you have any discrepancy, you found any discrepancy in the data, or you have any issues in the question, you want to discuss it with us, please ping us on the Telegram channel. So thank you so much for watching. Have a good day.